लेवल का एक महीना अगर 24,740 करता है तब हमारा जो हमारा बजट है वो 55,810 का मान के चलते हैं कि 55,95 स्ट्रॉन्ग करना है।
So it's not just country versus India, it is a country plus its companies versus others. And it's not necessarily but in today's context, how does innovation impact the power of that's what we discussed. We have good morning to all of you. The US administration, the new US administration prefers US social media regulations.
जिसके कारण जो companies like Meta have responded to this by entering third-party fact-checking. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे साथ और मैं सोच के नमस्कार आपके मेरे साथ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करते हैं जिससे बहुत परेशानी होगी। Hi, I'm Ron. Welcome to Math. In this video, we're going to learn about data and graphs. Because those are such big topics, we'll only be able to cover a few key concepts in this video. But they should give you a good foundation to build. Data, simply put, is information about the world. The type of data that we usually deal with in math is called quantitative data. Because it's quantities that we represent in numbers. Quantitative data comes in two basic flavors. Chocolate and vanilla? No. Continuous and discrete. Those sound disgusting. I've never ordered those flavors. What I really mean is that there's two basic types of data. Continuous data is data that can have any value in range. For continuous data, there's an infinite number of large possible data values in between any two actual data. For example, if you ask an ice cream shop how much ice cream you sold on Saturday afternoon, they might tell you 15 kilograms. They can also tell you that it was any number in between, like 14.6 kilograms, or even 14.625 kilograms, if they can measure that precisely. On the other hand, discrete data is data that can only have specific values. Discrete data can have any other possible data values in between any two consecutive. For example, if you ask an ice cream shop how many flavors to sell, they're going to respond with a whole number, 1, 2, 3, or even 31. They wouldn't give you a in-between number because they could have a fraction like 31.415 times flavors. You could mix two flavors together to get a brand new one. I call this flavor vanilla. Anyway, you get the idea. Continuous data typically comes from a process of measurement, and the values you get are only limited by the precision and the measurement device you're using. However, discrete data typically comes from a process of counting, which is often limited to specific values like those numbers are in. To see the difference, think about two types of data associated with a baseball. The number of home runs that a player hits each season is an example of discrete data. It can only be a whole number. But if you keep track of the average distance a player hits a ball, that would be an example of continuous data, because it could be any decimal value that you measure. Now that you know a little bit about quantitative data, let's talk about ways data can be organized or stored. Naturally, the more data that's collected, the more important it is to organize it so it doesn't become a giant jumble of numbers. Organizing data is typically done with a data table. Most data tables are made from the intersections of vertical columns and horizontal rows. Each box that's formed by these intersections is a cell, and it can hold a number or other data. The columns and rows have labels to help you interpret data. For example, this data table shows the results of a class survey of students in That's 5 columns, and each label is a choice from the survey of easy or topics. And it has a single row displaying the number of students. These labels make it easy to tell what the numbers in the cell mean. For instance, this 9 is at the intersection of the column for hamburgers and the row for the number of students. So we know that 9 students answered hamburgers in the survey. This table happens to be in a horizontal format because there's more columns than rows. But there's no reason you couldn't switch the columns and rows to get a vertical format instead. These two tables contain the exact same set of data, they're just laid out differently. Of course, the more data a table holds, the more complicated it gets. For example, this data table organizes a lot of quantitative data about the climate in the other dimension. It's got a column for each month of the year and several rows corresponding to weather measurements, IMO temperature, and average precipitation and snowfall. A data table like this can be very useful because it can help answer questions like which month is typically the warmest in the year. If you look at all the numbers on the rows about temperature, you'll see that the highest numbers are in the column labeled
with July. annual summit को There's something that would be even more useful than a data table for answering questions like that. And that something is called graphs are visual representations of data. Instead of using rows and columns and numbers, graphs use a variety of visual elements like points, lines, rectangles, or other graphics to make that picture. To see how helpful graphs can be, let's focus on the row of data that records average precipitation or rainfall. You'll see a graph of that data. This particular type of graph is called a bar graph or a bar chart because it uses rectangular bars to represent numeric values. Just like the data table, the graph has labels on two of its sides. These sides are called the axes of the graph. The horizontal axis on the bottom lists the months of the year, while the vertical axis on the left side is a sequence of numbers to show the precipitation in inches. As you might expect, the height of the bars in the bar graph correspond exactly with the numbers in the table. You can see that by looking at the scale on the vertical axis. The data table tells us that the average rainfall for the month of May is 2 inches. And the height of the bar for the month on the graph exactly matches 2 inches on the vertical axis. So you can almost imagine that a rain cloud hanging on the field at the bar today. Notice how easily the graph lets us see how the rainfall changes throughout the year. We can quickly find the highest and lowest months because our brains are able to compare the size of the bars much faster than we can compare the numbers in the table. That's why bar graphs are such useful tools for representing quantitative data. Here's another bar graph that's made from the row data showing average snowfall. Can you tell which month typically gets the most snow? Yep, it's January. And by looking at the scale on the left side of the graph, you can see that bar represents 14.5 inches of snow. Notice that these two different bar graphs have different number sequences or scales on the vertical axis. The rainfall graph starts at a minimum value of 0 inches and goes up to a maximum value of 2.5 inches. The snowfall graph starts at 2 and goes up to a maximum of 6 inches. Also notice that each graph uses a different size subdivision on its vertical axis. The rainfall graph has a division every 0.5 inches, while the snowfall graph has a division every 2 inches. The size of these subdivisions is called the interval. Would you say that This combination of the minimum value and maximum value and interval on the scale of an axis. Making a graph, it's very important to choose a scale that does a good job of displaying the data in a clear and understandable way. For example, if we used the same scale for the rainfall data as we did for the snowfall data, our graph would look like this. That's not good. Now you can hardly tell the difference between the heights of the bars because they're all squished down below the 2-inch mark. Likewise, if we use the scale of the rainfall graph or the snowfall data, a lot of the values would be off the chart. So keep that in mind if you ever need to draw a graph yourself. You'll want to pay close attention to the range of values of the data set so that you can choose a minimum, maximum, and interval that are a good match for the data you're going to graph. For example, what if you have a data table that contains negative values, like this one that tracks how much money an investor made during each month of the year. The highest monthly gain was $800. There are some months with negative months, like negative $400, which means the investor lost money. Unfortunately, bar graphs can be adapted to handle negative values too. All you need to do is extend the vertical axis scale using negative values that go below the horizontal axis. That way you can display negative values as bars that go down instead of up. Pretty cool, huh? Of course, bar graphs aren't the only way to turn data into a graph. There are actually many different kinds of graphs, some of which are better than others for certain types of data. Unfortunately, we don't have time to cover all these different graphs in this video. Instead, we just focus on one more very common option called line graphs. Line graphs are great over many types of data, especially data about how things change over time. The Yellowstone data table we saw previously also had data showing how the average high and low temperatures change throughout a typical year. Here's a line graph of just the high temperature. If we compare it to the bar graph we made for the precipitation data, you'll notice that the bar graph only had horizontal intervals for tracking values on the vertical axis, while the line graph also has vertical intervals for tracking values on the horizontal axis. These two sets of lines form a grid that makes it easier to locate individual data points on the graph. For instance, notice that for the month of June, there's a dot exactly at the intersection of the vertical line for June and the horizontal line for September. That matches perfectly with the data in the table that shows an average temperature of 70 degrees in June. And if you count them all, you'll see that there's 12 dots total
for each value in that row of the data type. After all these dots were plotted on the graph, they were connected with a grid cell indicating each adjacent pair. Why was this done? To help us identify any trends in the data. A trend is simply a pattern increasing, decreasing, or staying basic on the same. Identifying these sorts of trends in data can be helpful in a couple of different ways. First, trends can help you understand data on a higher or a more general level. For example, the trend in this Yellowstone region is that the temperature increases from January to July and decreases from August to December. Second, trends can sometimes help you make predictions about what might happen in the future. For example, if you have a line graph showing how the population of a bison herd is changing over time, it might help you predict how many bison you expect to see next year. So line graphs are great for displaying data in a way that lets you quickly identify trends. Another strength of line graphs is that they make it fairly easy to plot and compare multiple sets of laws using different lines. We can easily add the data for the average low temperatures from another line like so. For multi-line graphs like this, we usually use different colors or line styles to help you tell which lines to which. Like all types of graphs, line graphs have some limitations too. For example, you remember our first set of data about students' favorite foods? Well, here's a bar graph and a line graph of that data side by side. Can you think of a reason why the line graph wouldn't be a good way to represent this data? Yep, it's because the options on the horizontal axis aren't related by any natural sequence. It doesn't really matter which order the different foods are listed in, and because the order isn't important, any trend you might see by using a line graph doesn't have any real meaning. In fact, it could actually be misleading using line graph locations like this, because it also implies that there could be choices in between the survey taco pizza or pizza hamburger. So in cases like this, it's better to just stick with bar graphs so people can compare. That's why line graphs are often used for data that occurs over time. Time forms a natural sequence where trend lines make sense, and there are always possible values in between whatever time interval is used on the graph. Alright, so now you have a basic idea of how data and graphs are distributed. You've learned about continuous and discrete data and how it's organized using data types. You've also learned how data can be displayed on graphs, make it even easier to understand. As I said, there are many different types of graphs, but for now, just make sure that you understand how to interpret bar graphs and design graphs. The best way to do that is to look at a how many IPRs are used in this age. जिस पर आप I think it is a मानना होगा और ये आपको जानकारी कि भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस में बहुत लंबे समय से सहयोगी रहे और इस सहयोग का भावना को भारत ने हमेशा इस तरह से दिखा है कि हमारे किसी भी प्रकार का खराब नहीं आया हो चाहे भारत पर अमेरिका दबाव रहा हो आ रहा हो दुनिया में किसी भी प्रकार के पोल बने होने भारत और रूस के संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया उस समय any kind of capability or any kind of economic activity. So it could be financial अपने दोस्त को अपनी energy supply, technology. रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के दौरान रूस के साथ व्यापार ना रोककर अपनी दृढ़ता को जाहिर करने में कामयाब रहे संभवतः यही कारण है कि रूस की ग्रीन बुक्स में भारत का नाम और इसी क्रम में मुलाकात आगे बढ़ता है सरगेई लैवरोव से मुलाकात हुई और भारत के रिश्तों की स्थिरता के बारे में रूस में भारतीय समुदाय है उसके साथ चर्चा करते हुए कहा कि मिलिट्री स्पेस और न्यूक्लियर रणनीति के मामले उसी देश के साथ साझेदारी कर सकते हैं जिस पर आप दुनिया में बहुत सारे रिलेशंस इस दौर में बने अमेरिका बने यूरोप बने भारत बने भारत अमेरिका बने लेकिन इन्होंने सरगेई लैवरोव जी से जब बातचीत की तो इसमें भी इन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर क्या हो सकता है यूक्रेन वाले मामले पर उनकी रूस की और इंडिया की क्या राय है गाजा के मामले पर
दिखा रहा है, strained अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ब्रिक्स, ऐसी culture तमाम today, बातें जिन पर than भारत it और was रूस साझा वक्तव्य और वक्तव्य व्यक्त करते हैं, उन पर चलना है। चलिए साहब, ये सब बातें हो गई। इन सब बातों के बाद में बढ़ते हुए अमेरिका के रिएक्शंस I'm not, I wouldn't say रिएक्शंस आते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि भारत ने वहां जाकर के अपनी दोस्ती को वापस से दिखाया है, शो किया है कि देखिए हम इनके साथ में लगातार जुड़े हैं। कोई बात नहीं, फिर वो समय आता है जिस समय ने पूरी मीडिया की आंखें अपनी तरफ कर ली। और वो क्या है? समय था व्लादिमीर पुतिन का एस जयशंकर साहब से। ये तस्वीरें हैं जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर यानी रशियन राष्ट्रपति कार्यालय में पुतिन साहब की जयशंकर साहब से मुलाकात। ये वो तस्वीर है जिसमें लोगों का ध्यान तरफ सहज ही आकर्षित क्वेश्चन ऐसा क्यों था? क्योंकि पुतिन के बारे में कहा जाता है कि ये अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों से ही मुलाकात Well, I don't think that's a future that we should accept. ऐसी And I think there are real opportunities, even as we speak, to make progress on trends. Let me give an example of an area that we're quite focused on, as is the government of India. The Paris AI summit a month or so ago, Prime Minister Modi very vocally embraced the idea of open source AI. And we feel we will continue to do so. a company like ours, that was very gratifying because we're spending, Meta is going to spend in building this business 2025 something on the order of $60 to $65 billion investing in AI to build foundations for models, powerful advanced performative business models, which we will then make available for free to developers around the world to build on top of fine-tuned models and customized local language data sets, and a country that is really thriving and taking advantage of that opportunity is India. And the reason why I think that's important and answer any and every practice question. As always, thanks for watching Max Antics. See you next China, but the Chinese are competitors, and they understand that this is the technological battlefields of the future. Hi, this is Ron. And it's really This lesson, we're going to learn about three important math concepts called the there's going to be a median, and the source. standard Math often open uses source data standard sets. Data sets are often just collections or groups of numbers. These numbers may be the results of scientific measurements or surveys or other data collections. For example, you might record the ages of each member of your family into a data set. Or you might measure the weight of each of your pets and list them in a data set. Those data sets are fairly small and easy to understand. You can have much bigger data sets. A really big data set might contain the cost of every item in a store, and the top speed of every landmass, or the brightness of all the stars in our galaxy. Those data sets would contain a lot of different numbers. If you had to look at a big data set all at one time, it would be pretty hard to make sense of it or say much about it besides, that's a lot of numbers. It makes me think With that, mean, median, and mode really help us out. Three different properties of data sets give us useful, easy to understand information about the data set that we can see in a picture and understand what the data means about the world we live in. That sounds pretty useful. So let's learn what each property really is and find out how to calculate In the last 10 years, Apple, I Let's guess, start. handed over data from 3.1 You may not have ever heard of something called domain before. Meta's data sharing is up by If so, 675% times. So mean percentage, so basically, mean and average are just two different terms for the exact same quality of a data set. That is one area Mean or average is extremely useful. To understand what it is, let's look at a simple data set that contains 5 lines as a visual aid. Let's also represent those numbers in stacks of blocks whose heights correspond to their values. paying a visit to Russia. Now, since each of the 5 numbers is different, the stacks of blocks are all different heights. AI and What if we rearrange the blocks? general We go and make
keeping the stacks the same. In other words, each stack we should should have the friends exact every same amount. success. What would that amount be? Attitude towards With a bit of trial and error, you'll see that we have enough blocks including each stack to have a total of 4. flashpoints like That means that chain, mean for an original data set would be 4. Thank you. Some of the numbers are greater than 4, some are less. The amounts should all be made the same. is willing to do So that's the concept of the mean. so that the issue is resolved by To smooth out or flatten all of the different data values into one consistent outpace the value. growth rates of the past Is there a way that we last can use year. math to calculate the mean of a data set? After all, it would be very inconvenient This if year, we 9 always had months. to use stacks of blocks This to do it. year, It's been happening we have easier way. surpassed all the growth that we had last year. Let me tell you that Over I'm 9 very months. happy To learn the mathematical procedure for calculating the mean, let's start with due blocks to again. trading. This time, instead of using trial and error, let's use a more systematic way to handle stacks and We blocks. also This way involves a clever combination of spheres addition and incorporated division. these. We know that we want to end up with 5 stacks that all have the same number of blocks, right? So first, let's add up all of the numbers, which is like putting all of the blocks we have into one big stack. Adding up all of the numbers, counting all the blocks, shows us that we have a total of 20. Next, we divide that number, or stack, into 5 equal parts. Since the stack has a total of 20 blocks, dividing it into 5 equal stacks means that we'll have 4 in each, since 20 divided by 5 equals 4. So that's the math procedure you use to find the mean of a data set. It's just 2 simple steps. First, you add up all the numbers in the set, and then you divide the total you get by how many numbers you added up. The answer you get is the mean of the data set. What I want to know is Let's use that procedure to find the mean age of the members of this fine-looking family. We add them all up using a calculator, or by hand if you like. The total of the ages is 222 years. But then, we need to divide that total by the number of ages we added, which is 6. 222 divided by 6 is 37. So that's the mean age of all the members in this family. Alright, that's the mean. Now what about the median? Median is the middle of the data set. It's the number that splits the data set into 2 equally sized groups or halves. One half contains numbers that are greater than 8. The other half contains numbers that are less than 8. Sometimes finding the median of a data set is easy, but sometimes it's hard. That's because finding the middle value of a data set requires that its members be in order from the least to the greatest, or vice versa. And if the data set has a lot of numbers, it might take a lot of work to put them in the right order if they aren't already that way. So to make things easier, let's start with a really basic data set that isn't in order. It's pretty easy to see that we can put this data set in order from the least to the greatest value just by switching the 2 and the mean. There, now we have the data set 1, 2, 3. And finding the median or middle of this data set is easy. It's just 2, because the 2 is located exactly in the middle. That almost seems too easy, doesn't it? Don't worry, it gets harder. Before we try a harder problem, I want to point out that sometimes the mean and the median of the data set are the same number, sometimes they're not. In the case of our simple data set, 1, 2, 3, the median is 2, and the mean is also 2. As you can see, if you rearrange the amounts or follow the procedure we learned today. What about the first data set that we found? We determined that the mean of this data set is 4. What about the median? Well, the median is the middle, and since this data set is already in order from least to greatest, it's easy to see that 3 is located in the middle, since it splits the other members into 2 equal groups. So for this data set, the mean is 4, the median is 3. So to find the median of a set of numbers, first you need to make sure that all the numbers are in order, and then you can identify the number that's exactly in the middle by making sure there's an equal number of members on either side of the same. Okay, so far so good. But some of you may be wondering, what if a data set doesn't have an obvious median? All of the sets we found the median of so far have an odd number of members. What if a set has an even number of members? Like the data set 1, 2, 3, 4. There isn't a member in the middle that splits the set into 2 equally sized groups. If that's the case, we can actually use what we learned about the mean to help us out. If the data set has an even number of members, to find the median, we have to take the middle 2 numbers and calculate the mean or average of those 2. By doing that, we're basically figuring out what number would be exactly halfway between the 2 numbers.
and that number will be your median. For example, in the set 1, 2, 3, 4, you can take the middle two numbers, 2 and 3, and find the mean of those two. You can do that by adding 2 and 3, and then dividing by 2. 2 plus 3 equals 7. 5 divided by 2 is 2.5. So the median of the data set is 2.5. Even though the number 2.5 isn't actually a number of the data set, it's the median because it represents the middle of the data set and splits the members into 2 equally sized groups. Okay, so now you know the difference Russia between and mean China are and said to be what about exploring the mode alternatives data set? to What in the world is SWIFT, that? that is 24% of global The economy mode is making just a away from technical the one. network. The value of the data Do you set think they can is mount most often. an The data effective sets we've seen challenge so far to has even generated because none of its data values were ever repeated. financial infrastructure? What if you have And this that data was set? underpinned by This set is a US, 6 and month. when we Some have of the an values are dollar, repeated. both of which If cannot we be rearrange them, we can see that there's 1, cannot be assured in two under the given 2s, 3 circumstances. So do you think that they The have mode of this option? data set Or do you is think the that value that world will occurs also most often, alternatives? most frequently. Yeah, So that would be that's 3. very Because number 3 was repeated one time. as well. The mode is the number that's repeated most often, not how many times which it is used as a refined As I mentioned, each number in the data set occurs only once. It has no mode. It's also possible for a data set to have more than one mode. Here's an example of a data set. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद आपका दिल गदगद हो जाएगा। जानकर भारत की स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारत ने किस प्रकार से रूस के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में किया। आज के सेशन बेहद खास है। जब आप ये खबर पढ़ रहे हैं, रूस ने भारत से हथियार खरीदा है। तो इस बात को सुनते ही आपके मन में एक तरफा प्यार ये भी जगेगा कि यार भारत डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया। अक्सर हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम रूस से वेपन खरीदते हैं। भारत का जो बिल है वो इस तरह का है कि रूस से हम लोग खरीदने वाले दुनिया में पर पाएगा। अब आपको ये खबर दिखा दी जाए कि रूस से खरीद रहा है तो आपको लगेगा यार वाह, मतलब ये उल्टी गंगा बह कैसे रही है। आज के सेशन में यही समझेंगे कि कैसे उल्टी गंगा बह रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भी ये सब कैसे हुआ, कहां से ये खबर निकल के आई, इस खबर का आधार क्या है, न्यूज़ पेपर्स में कहां से आया, सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। बात भारत की होने वाली है, इंडिया के होने वाली है और बातों में जब वेपन्स की चर्चा हो तो लगता है कि भारत ने अपना डंका दुनिया में बजाया है। हाल ही में आपको मालूम तो होगा कि भारत को चाइना के फिलीपींस को बेचकर भारत ने पैसे कमाए हैं। अब ऐसी स्थिति में रूस में अगर हमसे वेपन खरीदे होंगे तो डेफिनेटली वो यूक्रेन के खिलाफ उनका उपयोग करेगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी का बढ़ाया हुआ पूंजी के साथ हाथ ना केवल तेल के लिए काम में लाया बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर भी बेहतर यही हेडलाइंस आपको इशारा करते हुए बता रही है कि रशियन फंड स्पेंड $4 billion from the rupee Vostro account by defense equipment। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। रशियन फंड by $4 billion worth of Indian made arms pay in Indian rupees और उसका पेमेंट भी इंडियन रुपये किया गया। अगर आप पूरे व्यापार की कहानी को समझेंगे, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, किस प्रकार से इंडियन फंड पेमेंट क्या होगा, कैसे भारत से डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो ये आज का सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आप यहाँ पर खबर देख सकते हैं, मिंट ने एक्सक्लूसिव इस खबर को लिया, उसके बाद और वहीं से इस खबर को अपने आप प्रकाशित किया। अब मिंट ने ये खबर छापी है, इनके सोर्सेज क्या है वो मिंट वाले जाने। फिलहाल तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत और रूस के बीच के व्यापारिक संबंधों में जहां एक और भारत लगभग $60 बिलियन से अधिक का इनसे इंपोर्ट कर चुका है, $4 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया था। उस एक्सपोर्ट में डिफेंस की वैल्यू आ गई है। तो अमेरिका के द्वारा क्या ताजा हमको लगेगा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट क्या हमें प्रभावित करेगा? क्या हम अमेरिका के दबाव के चलते अपने प्रतिबंधों में घिरने वाले हैं? सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। इस सेशन में आगे बढ़ते हुए आपसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पोल क्रिएट कर दिया गया है, बताइए रशियन करेंसी क्या है? ऐसे रूसी करेंसी क्या है? आप रूसी करेंसी का जब तक जवाब देंगे, यहाँ पर यूरो तो यूरोप की करेंसी हो गई, क्रोन जो है वो डेनमार्क और नॉर्वे में यूज किया जाता है और टेंजे कजाकिस्तान में यूज किया जाता
Actually, I was thinking I should tell you about the number system that the ancient Romans used to count. That system is called so popular that it's still used for a few things today, which is why it's so taught in schools. बीपीएससी के बैच में To see how that system works, let's compare it to the counting system that we use today, which is based on Henry बिहार Arithmetic. पीसीएस का फाउंडेशन These are the modern symbols used to represent the numbers 1 through 10. अगर बिहार Now let's see how the ancient Romans would break down the same numbers starting with 1. Well, that looks pretty similar so far. About 2. That's different for sure, but it makes sense. There are 2 vertical lines instead of 1. And here's the Roman numeral 3. That also makes sense. It's just 3 vertical lines. So far, it looks like the Roman system for counting is just like tallying, where you make a vertical line for each number that you count. Just keep going like that. Fortunately not. The Romans were a lot more sophisticated. They came up with some other symbols that helped them write bigger numbers. For example, they invented this numeral, which represents the number 5. And this numeral represents the number 10. Notice that their symbol for 1 looks like our capital letter I. Their symbol for 5 looks like our capital letter V. And their symbol for 10 looks like our capital letter S. Okay, that seems easy enough. What about the numbers we skipped? That's where things get interesting, because the Romans made all the numbers we skipped using different combinations of the numerals for 1 and 10. To see how that works, take a look at the numerals for 4, 5, and 6. 5 is the key-like symbol we just learned about. But notice how the numerals for 4 and 6 are each a combination of the symbol for 5 and the symbol for 1. The only difference is that the 1 is much before the 5 and the 4 is after the 5 for 6. That seems a little confusing, doesn't it? What's up with that? दुनिया के द्वारा तमाम पढ़ने वाले प्रश्न के बाद The Romans were doing some simple arithmetic. कि आज The 1 before the 5 means 1 less than 5, which is 10. And 1 after the 5 means 1 more than 5, which is 6. That's a lot different than the number system we're used to. It can be a little confusing at first, because the order of the numerals determines how much add or subtract. Here are the basic rules. The numeral and less the value is reckoned as foreign numeral and subtracted. The numeral of equal or lesser value is reckoned after another numeral gets added. So in the case of 4, since the smaller numeral comes before the bigger numeral, it gets subtracted. But in the case of 6, the smaller numeral comes after the bigger numeral, so it gets added. Here's how they wrote the numbers down. Since these 2 smaller numerals come after the 5, यदि याद करने वाला समय हो तो 1990s का दौर हो जब ग्लोबल इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ी रही गल्फ वॉर के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी थी और occasionally the Romans would write it down, but in general they didn't like to repeat the same symbol more than 3 times a year. Like, remember how they wrote the number 4? Instead of writing it as 4 ones in a row, they usually wrote it as 1 less than 5. To get the number 9, you did something simple. You wrote 9 as 1 less than 10. इंडिया ने अपने रिश्ते रूस के That raises an important issue. Being able to use either addition or subtraction to make new numerals means that there are often different ways that you can write the same number. Take the number 8, for example. You could think of 8 as 5 plus 3 ones, B-I-I-I. You could also think of 8 as 2 less than 10, I-I-I-X, which would be correct. The ancient Romans seem to have been somewhat flexible about things like that. There are historical examples of the same numbers being written different ways. Perhaps different Roman mathematicians disagreed about the proper way to write numerals. Generally speaking, Roman systems used to prefer addition over subtraction. Even though I-I-X might not have been considered wrong, V-I-I-I wouldn't be especially valid. Okay, now you know how to write the numbers 1 through 10 भारत में numerals. जियोपॉलिटिक्स में The numbers that are most important for you to know, because large Roman numerals aren't used very much these days, except to confuse people watching Super Bowl. Let's learn a few more details, just in case the Roman Empire ever takes over again and starts making us all use Roman numerals at the grocery store. First, let's see what numeral the ancient Romans used to write 0. आंकड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमने अपनी तरफ तेल खरीदा Since the Romans primarily
हमारा बड़ा सवाल ये था कि हमने तेल तो खरीद लिया, लेकिन अब तेल का पेमेंट कैसे करें? भाई ऑब्वियस बात है कि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देश एक देश से दूसरे देश को जब पेमेंट करते हैं तो वो स्विफ्ट बैंकिंग एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है। जैसे आप इंडिया में किसी बैंक से किसी बैंक को ट्रांजैक्शन करते हैं तो भारत में आरबीआई रेगुलेशन दुनिया भर के देशों में आपस में एक दूसरे को पैसा भेजने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे SWIFT स्विफ्ट नाम से जाना जाता है। दुनिया वालों ने उस स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया है। दुनिया के देशों में पैसा भी नहीं मंगा पाओगे। ऐसी स्थिति में जहां 2022 में एक फ्रंट पर रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था, वहीं दूसरे देशों के साथ वो पैसे कैसे ट्रांसफर करेगा इसकी चर्चाएं कर रहा है। इस धन के ट्रांजैक्शन में उसको भारत ने कहा सर देखो ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने डॉलर आपको दे दें तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर आपको तेल बेचना है तो बहुत जबरदस्त आपको पेमेंट रुपी में स्वीकार करना करना पड़ेगा। रुपी ग्लोबल करेंसी नहीं। आप इसको ऐसे 5 करेंसी जापान, यूरोप और ये पाउंड और अमेरिकन डॉलर शामिल है। बोले इन 5 करेंसी में तो हम आते नहीं, आप एक रुपी में ही हम पेमेंट कर सकते हैं। अब बताइए आप पेमेंट कैसे लेंगे और कैसे वहां तक लेकर जाएंगे? तो रूस ने कहा कि आप हमारे किया ही जा सकता है, वो हमें पेमेंट तो देगा, आप हमें रुपी में ही पेमेंट दें। अब आप विचार कीजिए कि हम तेल का पेमेंट रुपी में करने वाले हैं। लगभग $7 बिलियन का रशिया ने हमें एक्सपोर्ट किया है। $7 बिलियन को अगर रुपी में कन्वर्ट करोगे तो औसत गुणा कर दिया जाए लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर इतना करोड़ रुपया बनेगा। इतना पैसा कैसे आप केवल इतना पैसा लेकर कैसे जाओगे? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम अपनी बैंकों का रशियन बैंकों का में अकाउंट साथियों दूसरा देश आपके बैंक के अकाउंट में अकाउंट अपना खुलवाए तो उसके अकाउंट कहते हैं। 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। अगर इंडिया वाले रशिया जाके खुलवाएं तो इंडियन बैंक से अपना नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे और हमारे लिए उनका अकाउंट यानी कि आरबीआई के द्वारा लगभग 34 ऐसी जिनके माध्यम से हमारी बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। और वो अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं? वो अकाउंट इसलिए खुलवा रहे थे ताकि भारत पेमेंट उन अकाउंट में हम रुपये में कर सकें। हमारे पास है हम अपना रुपया उसमें ट्रांसफर करें और वो उस अकाउंट में पैसे अपनी सुविधा के हिसाब से रखते रहें और उन्हें जरूरी पड़े तो वो हमारे देश की चीज खरीद कर उस पैसे को और भी बड़ा बना सकते हैं। उनकी मर्जी है, बस डेट में उसको खर्च नहीं कर सकते, वो हमारे देश में पैसा खर्च कर सकते थे। तो रशिया वाली बैंक ने इंडिया के वॉस्ट्रो अकाउंट में सारा पैसा रुपये में डलवाया। ये खबर जैसे मैं अक्टूबर में आपको दिखा रहा हूँ, रशियन एक्सपोर्टर्स होल्डिंग $8 बिलियन इंडियन वॉस्ट्रो और ये हमने इनको बढ़िया तरीके से अपने ही अकाउंट में पैसा रखा। अब इंटरेस्टिंग बात, भारत ने तेल खरीदा, तेल से अपनी इकोनॉमी को बढ़िया चलाया, रिफाइन करके दुनिया को बेच करके ही डॉलर कमाया और इनका पेमेंट रुपए में ही करके अपनी बैंकों में होल्ड करके रख दिया। यानी इंडिया ने ये जो 800 दिनों का कालखंड है ना, ये बेहतरीन किया है इस युद्ध के दौर में। मतलब इस पूरे दौर में इंडिया अपनी महंगाई को 4 से 6% के बीच में मेंटेन करने में कामयाब रहा। दुनिया में जहां महंगाई की इतनी जबरदस्त मार है, पाकिस्तान में 22% की हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। 800 रुपए किलो पाकिस्तानी रुपये किलो में आटा बिक रहा है। अगर भारत के रुपए में बात करें तो 250 रुपए किलो आटा बिक रहा है। ये पाकिस्तान में वहाँ भारत 4% से 6% के बीच में महंगाई दर को मेंटेन करने में कामयाब क्यों रहा? क्योंकि हमारे पास में किसी प्रकार का ऐसा कर्ज नहीं था। तेल सस्ता खरीद रहे थे और इतना सस्ता खरीद रहे थे
कि हमारी कंपनियों ने खूब पैसा बनाया, बढ़िया तरीके से हमारी देश के प्राइवेट कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने सस्ता तेल खरीद के बढ़िया दामों पर बेचकर तेल की कीमतों को स्थिर रखा और समय समय पर तेल की कीमतों को कम भी किया गया और कम करके हम बढ़िया चला गया। इस बीच में हमारे पड़ोसी श्रीलंका ने अपने आप को फेलियर होते देखा, पाकिस्तान ने फेलियर होते देखा, नेपाल ने फेलियर होते देखा, बड़े सारे देश इकोनॉमी के हिसाब से लेकिन इंडिया का पॉलिटिक्स खेल गया। अब क्या होता है, इनका पैसा हमारे अकाउंट में धरा रहा है, अब इनके साथ दिक्कत क्या है, बोले भाई हमने रुपया इकट्ठा तो बहुत कर लिया, अब ये इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि इस रुपये का अब करें क्या, क्योंकि इंडियन रुपया डॉलर की तरह नहीं है कि उसका पेमेंट दुनिया में किसी भी देश को कर दिया जाए। भारत हालांकि देश में बातचीत करने लगा, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज में जिस तरह से मतलब अभी कई छाते लगे हैं, एससीओ मेंबर बनने लग रहे हैं, बोले इन कंट्रीज में इंडियन करेंसी में ही पेमेंट करते हैं। दुनिया में जैसे जैसे भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, हो सकता है भारत की करेंसी की स्वीकार, लेकिन IMF की जो SDR मुद्रा है उसमें 5 जापानी येन आ गया, पाउंड स्टर्लिंग आ गया, यूरो आ गया और डॉलर आ गया। 5 में हमारा नाम नहीं आता, जब हमारा नाम आएगा तो दुनिया वाले पेमेंट स्वीकार करने लगेंगे। दुनिया के देश पेमेंट अभी रुपया स्वीकार कर रहे, रशिया वालों ने खूब सारा रुपया रख लिया अकाउंट में, नब उसका करेगा ना तो वो रूस में चल रहा है तो केवल इंडिया में, इंडिया में चल रहा है तो इंडिया वालों ने कहा कि बोलो सर जी क्या चाहिए, हम आपको इस रुपए में क्या पैक करके दें, बोले यार तुम दोगे क्या, दुनिया भर को हम तुमको तेल दे रहे हैं, तुम क्या दोगे, क्या दोगे, तो भाई वॉर में हो तो तुमने हाल ही में ईरान से ड्रोन खरीदे थे, अब इंडिया से हथियार इतने सारे वेपन दिन से वॉर चल रही है तो उसका कुछ तो इंतजाम होगा। ऐसी स्थिति में बनती है रशियन फंड्स स्पेंडिंग फ्रॉम रुपया और जानकारी निकल कर आई कि लगभग $4 बिलियन के अराउंड इन्होंने भारत से अपने वेपन्स परचेज किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो कि डिफेंस खरीदने में उपयोग बिलियंस ऑफ डॉलर जो पड़े थे रुपये के रूप में कन्वर्ट होकर उसकी जगह बोले तुम यार वेपन दे दो ताकि हम यूक्रेन पर उनको चलाएं। ये खबर बाहर निकल कर आई। अच्छा, दुनिया भर में ये खबर तो पहले से ही थी। कौन सी खबर कि रशिया के पास वेपन खत्म हो रहे हैं, ये रॉयटर्स ने भी खबर छापी थी फरवरी में। वहीं दूसरी ओर इन महाराज को जैसे ही कोई खराबी पता चलती है कभी भाई वेपन खत्म हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की को जैसे पता चलता है अमेरिका वाले खट से इनको चेक साइन करके देते हैं। अमेरिका बड़ा स्मार्ट है साहब सिस्टम, इनको एक तरफ $400 मिलियन की एड भेजता है और दूसरी तरफ वेपन भेजता है। लाओ जो पैसा दिए थे ना उससे वेपन खरीद लो, मतलब वेपन का व्यापार करता है वो इनके साथ, है ना। भारत ने ऐसे समय पर पुतिन के साथ तेल भी खरीदा और अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेच करके भी पैसा कमा लिया। अगर ये खबर सही है और वास्तविकता में इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, हमसे रूस क्या खरीदेगा? अगर इतना ज्यादा उसको रुपया यहाँ रखना है तो या तो वेपन खरीदने होंगे या फिर कारखानों के लिए मशीनरी खरीदनी होगी, कुछ ना कुछ तो उसको अल्टरनेटली हमसे खरीदना ही पड़ेगा। ये पहली बार है कि इंडिया एक ऐसी स्थिति में है अब हर तरह से भारत को ही फायदा हो रहा है। सवाल आता है अमेरिका का, अमेरिका इस बात पर क्या देखो, अमेरिका एक तरफ इजराइल यूक्रेन को अपनी तरफ से एम्यूनेशन दे रहा है, पैसे दे रहा है, लेकिन अमेरिका अपने आप को ये भी दिखाना चाहता है कि दुनिया में जो होता है वो मेरी मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो इनके एम्बेसडर हैं एरिक गार्सिया, वो इंडिया में ही है। उनसे हाल ही में किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि सर इंडिया ने ये सब इतना अच्छे से मैनेज कर लिया कैसे? गार्सिया कहते हैं कि भैया ये केवल हमारे कारण हुआ, हम चाहते थे कि दुनिया में महंगाई नियंत्रित रहे। भारत अपने पीपल कनेक्ट के चलते जो रूस के साथ
उसका विचार है उसके If you चलते read it, starting from the सस्ते में तेल खरीदने में कामयाब say हो is greater ताकि than दुनिया में Indian महंगाई past. नियंत्रित But रहे if you read it क्योंकि starting from the अल्टीमेटली smaller लड़ाई क्रेडिट Wow, की that's a है lot like इंडिया ने this. प्रॉपर तरीके से तेल खरीद के जहां अपनी महंगाई को नियंत्रित रखा वहाँ गारसिटी ये कहते हुए खुश हो रहे हैं कि अमेरिका चाहता था इसलिए ऐसा हुआ भारत ने अपनी तरफ से पहले ही क्लियर करके रखा है कि देखिए आपको क्रेडिट लेना है लेकिन अगर दुनिया में महंगाई नियंत्रित रखने में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा तो वो इंडिया का होगा क्योंकि इंडिया ने रूस से तेल खरीद कर दुनिया की महंगाई को नियंत्रित किया था क्योंकि $7 प्रति बैरल से कम दाम पर हमको तेल मिला जिसकी वजह से हमने सस्ते दाम पर तेल बेचा और दुनिया की महंगाई को नियंत्रित किया हमारे पीछे चाइना और फिर ईरान चले आए जो रूस के साथ मिलकर तो भारत अपने आप में इस बात का क्रेडिट लेते पीछे नहीं हट सकता आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इतनी बेहतरीन खबरें आपको भारत के बारे में सुनाते हैं अगर नाम है चैनल का तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें कृपया करके संभव हो तो सब्सक्राइब फिलहाल के लिए इतना ही बाकी हमारे कोर्सेज आज रात जाइए और कोर्सेज परचेज करिए अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें उसको प्यार दें और अपना करें महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और भारत अमेरिका को चौंका दिया इस बार बड़ी गोपनीय अंदाज में अब कुछ समय पूर्व मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मोदी जी रूस जाने वाले हैं 8 जुलाई को टेंटेटिव डेट बताई जा रही है इंडिया द्वारा कंफर्म नहीं किया गया रशिया द्वारा कंफर्म किया गया इस पर हमने कंप्लीट सेशन किया था और आपको मैंने बताया था कि ये जवाब था निखिल गुप्ता वाले मामले का जब जैक सुलिवान इंडिया आकर एनएससी के रूप में भारत को धमकाने का प्रयास किए थे कि मैं बता दूं कि सीसी-1 कौन है लेकिन सीसी-1 का पता चला नहीं लेकिन इस बीच में अमेरिका को भारत के जवाब मिलने शुरू हो गए और इससे भारत की तरफ से जवाब आया कि हम तो रशिया जा रहे हैं आपको ये जवाब दे रहे हैं कि हम आपकी वजह से 5 साल से नहीं गए थे लेकिन अब हम रूस जा रहे हैं अपनी तरफ से बात कर दी इसी बीच में एक और खबर हमने निकाली और वो खबर हमने ज्यादा अच्छे से कवर नहीं ना हमने मतलब मैंने तो खैर इस अपने न्यूज़ में नहीं इंडियन मीडिया में भी कहीं वो खबर नहीं आई और बड़ी खबर क्या है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद यानी कि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का रूस से वाया ट्रेन ईरान होते हुए कोयला अब इस बारे में ना तो सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी मीडिया के द्वारा रशियन रेलवे के द्वारा रिपोर्ट की गई है जिसको ईरान के अंदर तेहरान टाइम्स ने कवर किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगी है यूरेशियन टाइम्स कवर कर रहा है कि इंडिया वालों ने अभी थोड़े दिन पहले तो ईरान के साथ चाबहार को लेकर 10 साल का एमओयू किया था और उसी के बीच में इंटरनेशनल चालू भी कर दिया और ऐसा चालू कर दिया कि जो तमाम आजकलें आ रही थी रशिया का सामान अगर इंडिया पहुंचता है तो 45 से 60 दिन का समय लगता है वाया स्ट्रेट कैनाल निकाल लिया 25 हम चर्चा कर रहे थे और ये हो चुका है रशियन कोल रीचेस इंडिया वाया इंटरनेशनल कॉरिडोर हो गया 26 जून की खबर है बहुत ही लंबे अंदाज में ये खबर निकल कर आया पता भी नहीं चला और इस पर कोई भी नेशनल मीडिया का ध्यान नहीं गया खबर ये थी कि इंडिया सामान चैनल्स ने कभी गलती से इस पर रशिया से बकायदा चलकर भारत ट्रेन से सामान पहुंचा दिया गया वाया ईरान भाई साहब तो आप यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स में छोटी सी कटिंग जरूर देख रहे हैं कि रशिया एक्सपोर्ट मेजर कंसाइनमेंट वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पीएम मोदी के भारत में जाने से पहले तेहरान टाइम्स लिखता है कि रशिया एक्सपोर्ट इंडिया वाया ईरान बाई ट्रेन मतलब ही नहीं बकायदा ट्रेन इंडिया रवाना करके पहुंचा भी दी गई कहां से आई है पता चल रहा है कि ये कोयला वाया सेंट्रल एशिया इंडिया पहुंचा यानी कि यहाँ से होते हुए कई बार पूर्वी किनारा है उस तरफ से चलता हुआ सामान इंडिया विस्तार से बताएंगे
लेकिन ये भी बताएंगे कि ये कितनी बड़ी चीज निकल So कर if you pointed at a jealous of older sister who did get it right, and you're like, you want to be happy with your ice cream anymore, you want to just go home by yourself. Okay, let's try another example to make sure you've got the idea. कि अगर रशिया से इंडिया सामान हमारा देश बना रहा हो, चाहे Just like with your last example, आने you का can जो probably think फिलहाल of many values of वो men यहाँ that से would शुरू make होता this है। मान लीजिए statement. सेंट पीटर्सबर्ग से 6 रशिया less than की 7. राजधानी से So it was चलते one. चलते So it was आगे one. यहाँ So it was से होते zero. हुए बाल्टिक सी Any से होते number हुए फिर that's to नॉर्थ the left of 7 on the number line will फिर work यहाँ for से this inequality. सेल्टिक Because values decrease यहाँ when से you go होते from हुए right to left on the number उसके line. बाद में स्टेट ऑफ So जिब्राल्टर again, से घुसकर since you have an infinite number of possible मेडिटेरेनियन सी answers, को क्रॉस you just करके draw a आप line to पहुंचते हैं cover all यहाँ of पर it. स्वेज कैनाल And as before, स्वेज कैनाल we've में पहुंच opened करके on फिर आप exactly यहाँ at से 7. स्वेज कैनाल So से that निकल करके part is रेड not सी से होते हुए Since 7 बंदर अब्बास या से काफी मंडल से होते हुए जहाँ से होते हुए inequality n is less than फिर equal to 7 instead. इस पूरे रास्ते को फॉलो करने में include 7 45 से लेके 60 दिन का Some of you who are a little ahead in that, 45 you realize से that there are लगभग other 45 से लेके numbers 60 दिन का समय जिस ट्रैवल को करने में लगता है अगर इसका रिवर्स हम सीधा यहाँ से ट्रेन चलाएं और चला करके सीधा बाया ईरान होते हुए बंदर अब्बास या चाबहार होते हुए सीधा यहाँ से निकालें और निकाल करके सीधा इंडिया भेजते सामान तो यह समय 25 दिन का इसकी कल्पना तो वर्ष 2000 से की जा रही थी कि ऐसा होगा ऐसा करेंगे ऐसा कराया जाएगा लेकिन ये एग्जीक्यूट भी हो गया है लेकिन इसकी जानकारी ठीक है मतलब बहुत कम कवरेज इस बात को मिला है लेकिन अपन तो कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं ये कॉरिडोर 10 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट है मल्टी मोड का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप ट्रेन से चलेंगे कैस्पियन सी पानी को तैर कर पार करेंगे फिर ट्रेन से चलेंगे रोड से चलेंगे और चल करके फिर यहाँ से पानी से होते हुए आप जेएनपीटी पहुंचेंगे तो कई तरह के ट्रांसपोर्ट मोड यूज किया है ट्रांसपोर्ट वर्तमान में 13 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने को तैयार हुए हैं वर्ष 2000 में पहली बार भारत ने रशिया के साथ इस बात पर एग्रीमेंट किया था प्रेजेंस ऑफ ईरान कि अगर हम मिलकर के कुछ ऐसा बनाएं ताकि हमसे और रशिया के बीच का जो व्यापार है वो सुगम हो जाए तो दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाए इसी बात को पहचानते हुए जितने भी आस पड़ोस के देश थे जैसे अजरबैजान अर्मेनिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान टर्की यूक्रेन सीरिया बेलारूस और ओमान इन्होंने भी कहा साहब हमको भी इस रास्ते में मोड़ो अगर ये कॉरिडोर चालू हो गया तो हमारा भी ट्रेड बढ़िया हो जाएगा रीजन यहाँ पर ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कैस्पियन सागर के साथ लगे हुए जो कंट्रीज हैं ये सब तैयार हो गए साहब हमको भी जोड़ लो हमारा माल भी पहुंच जाएगा भाई इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना कंज्यूमर बड़ा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सामान पहुंचाने की हर किसी की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में हमारा भी ट्रेड आसान हो जाएगा इस तरह अब तक 13 देश सिस्टम से जुड़ चुके हैं इसके 3 रूट वर्तमान में काम कर रहे हैं कौन कौन सा एक तो वाया कैस्पियन सी होकर डायरेक्ट यानी कि मास्को से चले अस्ट्राखान से चले सीधा तेहरान बोर्ड कर दिया यहाँ से यानी कि कैस्पियन सी को डायरेक्ट पार कर दिया नंबर 1 इसको सेंट्रल कॉरिडोर दिशाओं को इस तरह से पढ़ते हैं अपन इधर की तरफ ईस्ट इधर की तरफ वेस्ट ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नाम दे दिया अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मध्य से होकर कैस्पियन सी से निकलो तब तो सेंट्रल हो गया लेकिन इसके पश्चिम की तरफ अगर आप देखो तो ये वाला कॉरिडोर मतलब पानी में से ना निकाल कर आप रास्ते रास्ते चलते जा रहे हो अस्ट्राखान से अजरबैजान अजरबैजान से तेहरान वाया रोड रेल नेटवर्क अगर आप पहुंचाते हो तो ये वाला जो तरीका है ये तरीका वेस्टर्न कॉरिडोर के नाम से जाना गया ऐसे ही तीसरा कॉरिडोर बनाया गया कि जो रशिया है रशिया का अगर ये वाला हिस्सा सामान भेजने के बारे में प्रयास करें तो कजाकिस्तान तुर्किस्तान और यहाँ से होते हुए फिर तेहरान यानी कि सीधा इधर से भी सामान को इधर भेजा जाए इसको ईस्टर्न कॉरिडोर नाम दिया गया यानी कहने का मतलब ये समझिए कि वर्तमान में इस कॉरिडोर का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा क्योंकि कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इनको शामिल करता है आज जो सामान हमारे तक पहुंचा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू आकर के पहुंचा है 2 ट्रेनें भारत में दी गई है ये कि रशिया से चलकर के वाया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और ईरान होते हुए इंडिया पहुंचे हैं ये गलियारा इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रतिबंध लादे जा रहे हैं या डर डराया जा रहा हो अगर आपने ईरान से किसी भी प्रकार का व्यापार किया तो हम आपके साथ प्रतिबंध लगा देंगे याद होगा जब चाबहार के साथ पहले तो हमें ये धमकाने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था
लेकिन हमने उन सबको किनारे करते हुए पूरी तरह से अपने यहाँ पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। रशिया से ये सामान पहुंच करके वाया पूरे सेंट्रल एशिया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने 45 दिन का सफर 25 दिन से कम में कर लिया है। बात करें रशिया से तेल की, तो बात करी थी सर हमने, हमको नॉर्ड स्ट्रीम गैस के माध्यम से ये पता था कि रशिया तेल के साथ साथ गैस भी बेचता है। कोयले की क्या कहानी है, तो देखिए कोयले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कहा जाए तो कोयला 4 भारत में कोयला वहीं बात करी जाए रशिया की, तो रशिया के पास दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोयला एक्सपोर्ट करने का पावर है, यानी कि दुनिया का लगभग 20% के आसपास कोयला रशिया एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया करता है, थर्ड नंबर पर रशिया आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोयला जो है वो सबसे तो चाइना में निकलता है, फिर इंडिया में निकलता है, फिर इंडोनेशिया, यूएस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया आता है। लेकिन यही कारण है कि हमें अपने लिए अच्छी क्वालिटी का कोयला मंगाना पड़ता है। तो रशिया दुनिया को लगभग 18% कोयला, ठीक है। आप ये सोचकर देखिए कि यह न केवल तेल कोयले से इस इतने सैंक्शंस वाले कारण में 43 बिलियन डॉलर कमा लिया है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इससे अंदाजा लगाइए रशिया पर कितने कोयला बेच करके पैसा कमा। अब आपके दिमाग में सवाल इंडिया ने रशिया से इतनी तमाम खरीदा, ऑलरेडी इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से कोयला रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे ही गर्मी पड़ी, इंडिया का जो बिजली प्रोडक्शन है कोयले से प्रोड्यूस होने वाली बिजली थर्मल पावर प्लांट से हम बिजली पैदा करते हैं। अभी जब गर्मी पड़ी ना इस दौर में, तो हमें बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ी। बिजली की आवश्यकता पड़ी, कोयले से बन रही है तो ज्यादा बिजली बनाओ। तो इस तरीके से हमने कोयला यूज किया, हमारे पास खबर है कि इंडिया का जो कोल स्टॉक है ना बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित हुआ। कोयले का स्टॉक थोड़ा डिप कर गया, किसी भी देश बड़ी आबादी are each a combination of the sum of 5 and the sum of 1. तरीके से यही कारण है कि कोयले का स्टॉक कम होना हमें मोटिवेट किया कि हम जल्दी से कोयला मंगाकर उसकी आपूर्ति कर लें। ठीक है, इंडिया ने दुनिया से कोयला मंगाने की करते हुए रशिया से कोयला मंगाया। ये बात इस बार इसके बाद जब हमने ईरान के साथ हाल ही में चाबहार के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया, जिस पर अमेरिका ने हमें समझाया कि भैया अगर आप ईरान के साथ व्यापार करते हो तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। इन सभी प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के बावजूद हमने अमेरिका के प्रतिबंधों का डर होने के बावजूद न केवल इसके साथ एग्रीमेंट किया, बल्कि उस पोर्ट का उपयोग करते हुए, हालांकि चाबहार के ही थोड़ा पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बंदर है वाया उसके थ्रू ये माल आया है, लेकिन कहीं से भी आया तो ईरान के थ्रू है। और अगर हमने ईरान के थ्रू व्यापार किया है तो अमेरिका के को चुनौती देने जैसा है। हमने आपको इस बारे में डिटेल से जानकारी पहले भी दी थी कि भारत ने हाल ही में कैसे चाबहार के साथ डील किया है। अब ये खास क्यों हो जाता है, बहुत बड़ा कारण है स्वेज कैनाल। असल में साथियों स्वेज कैनाल से दिन भर में वैश्विक व्यापार का लगभग 12% तेल ट्रैवल हो रहा है। एक दिन में अगर 100 तेल दुनिया में ट्रैवल हो रहा है तो 12% अकेला स्वेज कैनाल से। ऐसी स्थिति में इतना जबरदस्त तरीके से ट्रैवलिंग वहां पर हो रही है, गलती से अगर वो जाम हो जाता है, पहले मैंने आपको बताया था कि किसी ने वो कर दिया था, रास्ता जाम हो गया था, एक जहाज जो है वो फंस गया था। तो उस जहाज के फंसने से मैंने आपको बताया था कि रास्ता जाम हो गया था, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो स्वेज कैनाल और महंगा पड़ रहा है, 45 दिन मिनिमम लगता है रशिया से इंडिया सामान खरीदने में। हमने इसका 45 दिन जो मिनिमम लगता है उसके स्थान पर अगर इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को चुन लिया तो हम 25 दिन के अंदर 72 किलोमीटर ट्रैवल करा के वाया ट्रेन और जहाज हम अपने सामान को इंडिया लेकर पहुंच सकते हैं। भारत और का ही परिणाम है कि हम इनके साथ व्यापार में आए दिन नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। भारत और इसका व्यापार दिन उस समय जब दुनिया में प्रतिबंधों का सामना रशिया कर रहा हो, भारत अपने लिए इसके निश्चित ही फायदे इनमें से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, पॉलिटिकल, ये सब
फिर लोगों के साथ में साझा किया। especially nowadays. अब बड़ा सवाल ये है कि भारत ये सब कर तो Now you know how to write the भारत numbers. ने 1 through नॉर्थ 10 साउथ on कॉरिडोर numbers. को They're इन the numbers that are कंपैरिजन most आईमैक्स important यानी कि for you जो to इंडिया know. मिडिल ईस्ट Because large कॉरिडोर बनने जा रहा numbers था aren't उसमें used स्थान very पर much इन दिनों these प्राथमिकता days. क्यों दी? Except to देखो confuse जब people G20 watching the हुआ Super था तो Bowl बाइडेन over इंडिया there. पहुंचे और उन्होंने बहुत But let's learn a few more numbers, इंडिया just in से case the सेंट्रल Roman एशिया Empire होकर ever के takes over again सॉरी and इंडिया से starts मिडिल making us ईस्ट all होकर use के Roman numerals at the grocery store. ट्रांसपोर्ट का रास्ता तैयार कर First, देंगे let's see what numeral the ancient Romans used to write zero. अब इन दिनों हो क्या रहा है कि ये जो इंटर Well, that's ये जो है ना awkward. इंडिया They से did. लेकर के मिडिल ईस्ट Since the Romans primarily used these इसको numerals बड़ी for counting चुनौतियों का things सामना like करना animals पड़ or रहा है crops or other क्योंकि ये tangible things like ट्रेड रूट that, वाया they didn't इजराइल really need a निकलेगा numeral for zero. इजराइल को लेकर के Instead, इन दिनों if they didn't have any of something, कैसे they just write एक the तरफ word तो no, वहाँ पर which इजराइल के उत्तर में translates बैठा to हुआ no. जो लेबनान है वो All दबाया right, जा then, रहा है since कि हम there's इसको nowhere to नहीं see मानेंगे। here, वहीं let's just दूसरी keep ओर going ये down the सऊदी number अरब line है and see how the सऊदी अरब Romans का wrote the अमेरिका के numbers साथ 11 पंगा through चल रहा है तो 10. बोले अमेरिका वालों को Notice बीच में that they पकड़ did this बनो। just by एक counting तरफ the लेबनान में numerals for 1 हिजबुल्लाह through 10 इजराइल को after धमकाए the पड़ा है numeral for 10. यानी कि इस पूरे So नॉर्थ they're साउथ basically कॉरिडोर की just तर्ज पर 10 जो plus आईमैक 1, बनाने की 10 बात plus है 2, इस आईमैक 10 को plus 3, चुनौतियां देखने and so को on, मिली up to ऐसी 10 स्थिति plus में 10, भारत ने which is how तत्काल they wrote the number 20. अपने आईएनएस That fits with the यानी rule we इंटरनेशनल नॉर्थ learned, साउथ where if a कॉरिडोर को numeral तत्काल of प्रभाव से equal or हटा less दिया और value कहा comes कि भाई directly हम इस after काम another को आगे number, it बढ़ाएंगे gets added. और आगे बढ़ाकर And now that बढ़ता we've रहेगा learned जब how तक the वो Romans बनता है counted लेकिन by फिलहाल ones, के लिए let's see how हमने they अपना counted by ट्रांसपोर्टेशन कर लिया है तो We've ये already अपने seen आप that में they बड़ी use the बात है symbol साथियों X to कि represent भारत ने अमेरिका use के 2 X's प्रतिबंधों for को डर के 20. Since 10 plus 10 अपने equals लिए 20. सामान मंगा So it भी makes लिया sense है they और would सामान use का 3 मंगाना X's एक for बड़ी 30. सुर्खी बन गया Since 10 ठीक है plus 10 plus 10 फिलहाल के equals लिए 30. इतना ही अब इस When it comes to 40, अधिक they again जानकारी switched to using subtraction, so they didn't have to के repeat साथ the साथ symbol X आपको more than 3 तो times. सारी जानकारी They मेरे could do लिए this फाउंडेशन because they also had a special symbol for 50 आप अपने that looks like our capital letter L. पूरे एक साल की So if L means 50, you can make 40 by writing 10 less than 50 मात्र or 1499 के XL. अंदर पढ़ सकते हैं All right then, based on what you know so far, can you guess how they would have written 60? हमारे Yep. हैंड रिटन नोट 60 जिसमें कि is सारा LX, कंटेंट बाय हैंड meaning मेंशन 50 किया गया plus 10. है हिस्ट्री And ज्योग्राफी 70 पॉलिटी is इकोनॉमी के LX, मेरे अपने नोट्स or 50 plus 10 plus 10. 999 में And कुरियर 80 पहुंचा is सकते हैं। LXXX, आप किसी भी अपनी or पाठशाला 50 plus 10 plus 10 ऑर्डर कर plus सकते 10. हैं ठीक है साहब And again, अधिक जानकारी remembering that the कॉल Romans सेंटर didn't like to repeat a symbol more than 3 times, it won't surprise you that they wrote 90 as 10 less than 100. But to do that, they needed to invent another special symbol for 100, which looks like our capital letter C. So C means 100, and XC means 10 less than 100, or 90. The Romans also had dedicated numerals for 500 and 1000 that looked like the capital letters D and M, respectively. Those symbols come in handy for writing large numbers, like the year this video was made, 2024. That would be MMXXIV in Roman numerals. Looks confusing, right? Let's break it down to see what's going on. The first two symbols stand for 1,000 each. So 1,000 plus 1,000 is 2,000. Then we see two X's representing 10 plus 10, or 20. And finally, we have IV, which is how the Romans wrote 4. So the combination of all these amounts is 2,000 plus 20 plus 4, or 2,024. As you can see, Roman numerals actually make a lot of sense if you know the basic symbols they used and the rules that they used to combine them into various amounts. नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स मीडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप हैं मेरे साथ में बजट 2024 पर चर्चा कर रहे हैं साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में केंद्र सरकार का जो बजट आया है इसका मतलब क्या होता है इसकी वजह से आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है तुरंत इसका असर बाजार पर कैसे पड़ा है साथ ही साथ जो इतने दिनों से लोकसभा चुनाव के बाद में एनडीए गठबंधन में सहयोगियों के लिए कुछ बातें चल रही थी कि साहब केंद्र सरकार में इन्हें उच्च पद मिलेंगे या फिर उच्च कैबिनेट के अंदर कुछ बढ़िया जगह मिलेंगी या फिर लोकसभा स्पीकर का पद मिलेगा या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा फाइनली बिहार और चंद्रबाबू नायडू जी को एक पैसे का बजट मिल गया है ऐसी स्थिति में आज के सेशन में उन बातों की चर्चा करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा आपके लिए क्या है इंसान के लिए क्या है विद्यार्थियों के लिए क्या है जॉब सीकर्स के लिए क्या है तमाम बातें आज के सेशन में होने वाली हैं लेकिन फिर से शुरू करने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए और उस बेसिक समझ से आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा समझने वाला सेशन देखिए भारत सरकार भविष्य में यानी कि आज 1 अप्रैल से लेकर के जब सरकार के चुनाव चल रहे होते हैं फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल से लेकर चल रहे होते हैं लेकिन अब नई सरकार बनी है तो नई सरकार का बजट अब आया ये अंतरिम बजट के बाद का पूर्ण बजट है सरकार करती क्या है कि फाइनेंशियल ईयर में खर्च सारा सिस्टम बताती है कि हमें अपने द्वारा इस काम पर इतना पैसा खर्च करना है संसद से परमिशन मांगती है कि अगर आप लोग इजाजत दें तो
to 3 times in a अपने row. संचित फंड में The से symbols पैसा for 5, लेंगे 50, और and उसे देश में 500 are खर्च not कर दें। repeated. फिर That संसद makes को ये sense भी because बताया if you जाता already है have कि हम symbols फंड for खर्च 10 करना or तो चाहते 100, हैं, you लेकिन never हम need to make कमाएंगे those कहाँ numbers से? by तो repeating 5 कमाने or का 50 रास्ता भी twice. भारत सरकार So it's बजट fine में to make बताती है। 300 यानी by कि writing बजट एक CCC, इस प्रकार का but you want to make 150 by writing विचार है pound. जिसमें ये बताया To write जाता है कि हम 150, इतना you'd पैसा simply use लेकर इन CL चीजों पर or खर्च करेंगे, 100 plus कहाँ से 50 लेंगे? step. कंसोलिडेटेड Second, फंड ऑफ when it इंडिया comes to से, subtracting जहाँ पर अपन numerals, सबने only तमाम the symbols प्रकार for से पैसे 1, भर के रखे हुए हैं, 100 टैक्सेशन can be से पैसे भर subtracted कर from रखे another हुए हैं, numeral. कर्जे से रखे हुए The हैं, symbols for 5, डिसइन्वेस्टमेंट 50 से भर and कर रखे हुए हैं, 500 are वहां not से पैसे को हम यूज So it's fine to write करेंगे 90 देश as को आगे XC, चलाने के 10 लिए। less और than जब 100, खजाना but you भरना want to होगा write तो हम 95 ऐसे as बढ़ेंगे। BC, इसको 5 less आसान than करके समझाएं तो ऐसे समझिए, Instead, you'd write 95 अपने पिताजी as को जब पहली XC, तारीख को तनख्वाह which is मिला करती थी, admittedly a little more तनख्वाह के साथ ही confusing because पिताजी you could think of बैठकर that चर्चा as either करते थे 90 कि plus इस महीने 5 कैसे चल रहा or है, as बच्चों की 105 फीस पर minus कितना, 10. खाने पीने पर कितना, Are you घूमने starting फिरने to पर see कितना, why Roman सेविंग्स में numerals कितना aren't पैसा used very खर्च much होगा। anymore? ये पिताजी Don't पहले worry, ही it रखते gets थे। worse. और फिर That's इस because जगह से इतना finally, इतना पैसा आ सकता है, 1 is ब्याज only से allowed to इतना be आ सकता है, subtracted तनख्वाह from इतनी 5 आ or सकती 10. है, फलानी जगह से 10 लोन इतना is मिल only सकता allowed to be है। वो subtracted जो हिसाब from लगता है ना, 50 or समझो 100. आने वाले समय का 100 हिसाब is बहुत only allowed to be होता है। subtracted फिलहाल जो from आप 500 आज चर्चा कर or रहे हैं, So वो इस suppose you're going to write the खर्चे number की of और 490 आय की and you ब्यौरे think, की चर्चा hey, कर रहे हैं। I'll just take इस 500 बजट and से एक subtract दिन 10 from पहले यानी कि that. कल XD, निर्मला easy peasy. सीतारमन जो Not है so उनके fast. द्वारा The ancient भारत Romans might के throw you in संसदीय prison for लोकसभा that में because you broke a आर्थिक math सर्वेक्षण भी rule. प्रस्तुत You were किया गया। supposed to write इकोनॉमिक 490 इकोनॉमिक the way सर्वे that में क्या all होता good Roman है? citizens इकोनॉमिक do. सर्वे में भारत सरकार पिछला रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है $90 more जो than अपन ने पिछली 400. बार पैसा खर्च किया Or था, maybe उसका that's कहाँ 100 हुआ? less than 590. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो Either हम way, नहीं कर पाए? how about भारत if we की all agree चुनौतियां to क्या just use हैं? modern जैसे numbers most of the time विद्यार्थियों से and रिलेटेड only use Roman चुनौतियां क्या हैं, numerals to सर्विस सेक्टर impress से लेकर people? चुनौतियां क्या हैं, महंगाई से लेकर चुनौतियां क्या हैं, यदि आप I hope that helps you understand the basics of how सर्वे Roman आपके लिए numerals बहुत work. महत्वपूर्ण Like होता है। anything in math, और अगर the आप key is to रोजगार में practice what ऑलरेडी हैं you've तो learned बजट so you really महत्वपूर्ण होता है, understand. ठीक है? And तो as चलिए always, आज के thanks for watching सेशन में Math बजट की Antics. चर्चा I'll करते see you हैं। next time. बात है देश के वित्त मंत्री के द्वारा Imagine how many chairs we could buy अब ये if you अच्छा है या बुरा है $40 आप a year. अपने हिसाब से तय कीजिएगा। Are you not entertained? मैं आपके सामने ये सारी जानकारी रखते जा रहा हूँ क्योंकि इससे निश्चित ही भारत में रहने वाले लोगों के जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। इस बजट में कौन से विभाग को क्या मिला जरूर आप जानें। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये भी आप जानेंगे। किसानों के लिए क्या रहा, युवाओं के लिए क्या रहा, ये भी आप जानेंगे। आज के सेशन में हम ये भी जानेंगे कि सरकार ने बजट के माध्यम से अपने सहयोगियों को एनडीए गठबंधन में सहयोगियों को क्या दिया जिससे कि वो आगे भी रुके रहे। ये सारी बातें जानेंगे, लेकिन बाजार ने इसको कैसे लिया उसे भी जानेंगे। यानी कि बाजार ने इस बात को लेकर के कि हाँ बजट बाजार के लिए अच्छा, शेयर बाजार के लिए अच्छा है नहीं, इसे भी आज के सेशन में जानेंगे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूँ इससे पहले ही, ताकि इस बात को आगे बढ़ते हुए समझें। आज सुबह हालांकि मैंने सेशन रखने का सोचा था, इकोनॉमिक रिव्यू पर आपके लिए एक सेशन लेकर आऊं, पर नहीं ला पाया तबियत की थोड़ी नासाजी के चलते। इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो निकल कर आया है, आर्थिक सर्वे जो अपना आया है, उसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। वो ये है कि ये जो माहौल बना हुआ है कि रोजगार के अवसर कम होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मानते भी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आएगा तो कुछ तो रोजगार आएगा, लेकिन उसका जो लोग सही से यूज करेंगे उनके लिए वो नए अवसर भी लाएगा। आर्थिक सर्वे में जो बात लिखी हुई है वो बातें ऑलरेडी न्यूज में पिछले साल भी चल रही है और लंबे सालों से चली आ रही है कि अगर देश के लोगों के पास स्किल नहीं है तो ऐसी स्किल के लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, और ऐसी स्थिति में अगर एआई आता है तो बहुत हद तक लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि एआई का कैसे यूज करना है, उनके लिए अनएम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ा सकता है। और आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सिस्को ने बहुत सारे लोगों का ले ऑफ किया है, यानी कि नौकरियों से निकाला है। क्यों? क्योंकि उनके काम जो पहले लोग किया करते थे वो अब मशीनें करने लग रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के लिए। ऐसी स्थिति में आप लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयबल हैं लेकिन उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की जानकारी नहीं है, उनके लिए हम लोग आपके सामने ग्रोथ स्कूल का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रोथ स्कूल के द्वारा आप लोग चाहे सेल्स में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस में जाना चाहते हो, एचआर के डेवलपमेंट में, टेक रोल में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, तो आपके लिए चैट जीपीटी का क्या महत्व हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व हो सकता है, इसके लिए एक फ्री वर्कशॉप रखी जा रही है जो कि आपके लिए बहुत काफी है। अंकित इंस्पायर इंडिया के विद्यार्थियों को इसमें एनरोल करने का आह्वान है, लिसनर्स को आह्वान है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके
लिए रखा गया है। इसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन गया है, आप वहां पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लें। कमेंट बॉक्स में भी जानकारी दी हुई है, आपको वहां से ये जो फ्री सेमिनार है इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, शुरुआती 1000 लोगों को इसमें एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट होने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पहुंचकर अगर एआई का ये जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको आने वाले समय में जॉब ढूंढने में सहूलियत, सैलरी में फायदा और कैरियर ग्रोथ में भी फायदा मिलेगा। ऐसा ग्रोथ स्कूल का आपके लिए मानना है। ठीक है, अभी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें और स्कैन भी कर सकते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने आज जब बजट पेश करना था उससे पहले राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, बाकायदा फिर जो अपने दही चीनी खाते हैं वो खाकर के शुभ शुरुआत करने के लिए संसद में निकली। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किया था कि आप जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो ये शुभ शुरुआत कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही भारत में बजट की प्रस्तुति के लिए निर्मला सीतारमण जी लोकसभा पहुंचती हैं, बजट डेटा दिखाती हैं और बजट प्रस्तुत करने निकलती हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एक महिला 7वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि चुनावों से पहले भी बजट लाया गया था। चुनावों से पहले यानी इस साल में दूसरी बार बजट आ रहा है। चुनाव से पहले जो बजट आया था उसे अंतरिम बजट कहा जाता है, यानी कि चुनाव के कालखंड तक का बजट अंतरिम बजट था। चुनाव भर का काम चल गया, अब उसके बाद नई सरकार है, नई सरकार अपने हिसाब से अब फंड मांग रही है कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए। निर्मला सीतारमण जी ने अपने द्वारा 7वां बजट प्रस्तुत करते हुए अलग अलग सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की। 1 घंटे 23 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया, उसमें शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला, युवा, इन सब के लिए ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट दी। लेकिन इन अनाउंसमेंट्स को समझें उससे पहले फिर से एक बात ध्यान से सुन लें कि बजट का अर्थ केवल घोषणा नहीं। एक आम भारतीय के रूप में बजट का मतलब घोषणाओं का पिटारा होता है, लेकिन विद्यार्थी और पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए बजट का सीधा अर्थ होता है इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे। और भारत पैसा कैसे कमाता है इसको आप एक आसान रूप में इस वाली पिक्चर से समझने का प्रयास करिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आता है, हमारे पास से मतलब है भारत सरकार के पास कहां से आता है, तो उसमें जानिए 70-27% हम अपना धन जो है ना, मान लीजिए भारत सरकार 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए अपने फंड में इकट्ठे करके रखती है कंसोलिडेटेड फंड में, उसमें से 27 रुपए वो उधार मांगकर काम चलाती है। 17% कॉर्पोरेट जो है उनसे टैक्स से लेती है, आप और हमसे इनकम टैक्स में 19% वसूलती है, कस्टम ड्यूटी से 4%, 5% एक्साइज ड्यूटी से और कस्टम ड्यूटी से, यूनियन टैक्स से, जीएसटी से 18%, 9% नॉन टैक्स रिसीप्ट से और 1% कैपिटल रिसीप्ट से प्राप्त करती है। यानी कि हमारे 100 रुपए सरकार अगर कमाने के लिए निकालती है तो उसमें से कुछ इस प्रकार से वर्गीकरण होगा। लेकिन जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो भारत सरकार अपनी कमाई का 19%, अपने मतलब 100 रुपए सरकार खर्च करने वाली तो 19 रुपए ब्याज पर खर्च करती है। ध्यान से समझना, हम 27% को कहां से ले रहे हैं, 27% को कर्ज में ले रहे हैं। ये किसी भी देश का स्वास्थ्य दर्शाता है। हम कितने भी अमीर हो लेकिन आपको पता चल रहा है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात कि 27% तो हम अपनी कमाई का ले रहे हैं कर्जा, और फिर कर्जे को चुकाने के लिए 19% हम ब्याज पे कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए हम खर्चा के लिए निकाले, उसमें से 19 रुपया हम निकाल रहे हैं कि चलिए साहब ये तो हमारे ब्याज में जाएगा। ये स्वास्थ्य दर्शाता है किसी इकोनॉमी का। मतलब हम 100 रुपए का बजट जरूर बनाए हो, उसमें से काम का 81 रुपया ही निकला है, 19 रुपया तो ब्याज भुगतान में चला गया है। ठीक है, अच्छा इनमें भी बड़ा पैसा कहाँ खर्च होता है? सबसे बड़ा अमाउंट 21% खर्च होता है राज्यों को इसमें से पैसा देने में। कैसे दिया जाता है? केंद्र सरकार राज्यों से बहुत सारा टैक्स वसूलती है। आप पूछेंगे राज्यों से थोड़ी वसूलती है सरकार। अच्छा एक बात बताइए, मैं राजस्थान में रहता हूँ, आप कहीं और रहते होंगे, लेकिन मैं तो इनकम टैक्स पे करता हूँ। वो इनकम टैक्स जो मैं पे कर रहा हूँ वो राज्य सरकार को थोड़ी मिल रहा है, वो
केंद्र सरकार को मिल रहा है। ऐसे ही जीएसटी में भी एक सेंट्रल जीएसटी का एक स्टेट जीएसटी का हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में एक हिस्सा केंद्र सरकार ले जा रही है। तो केंद्र सरकार राज्यों के रहने वाले लोगों से जो पैसे कमाती है ना इन टैक्सेशन से, जो इनकम टैक्स लेकर चली गई केंद्र सरकार, जीएसटी लेकर चली गई, तो जो देश भर से टैक्स इकट्ठा करती है उस टैक्स को फिर से वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करती है, राज्यों को वापस लौटाती है कि एक बार मैंने इकट्ठा कर लिया, अब मैं देश में राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से किसको मैं किस लायक समझती हूँ पैसा बांटा। ठीक है, तो 21% भारत सरकार अपने कुल अंश में से कमाई में से राज्यों को टैक्स के रूप में रिटर्न करता है कि ये लो भाई मैंने आपका पैसा लिया था, सब लोग ले लो। इसमें से 19% मतलब ये 100 रुपए में से 19% इंटरेस्ट पेमेंट पर दिया गया था, वो हो गया 16%। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि हमारे खर्च में सबसे बड़े मद कौन से हैं, तो टैक्सेशन जो राज्यों को दिया गया, ब्याज जो भुगतान में दिया गया, फिर उसके बाद में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उनके ऊपर 16% खर्च किया जाता है। ठीक है, सॉरी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जो केंद्र के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है इंक्लूडिंग डिफेंस वगैरह, उसके अंदर ये पैसा 16% खर्च किया जाता है। बाकी 8% डिफेंस सेक्टर पर, 6% सब्सिडी पर, फाइनेंस कमीशन की सब्सिडीज आदि पर 9%, पेंशन पर 4%। इस तरह से हम अपनी कैपिटल का खर्चा करते हैं, अपने पास जो पैसा आता है उसका खर्चा करते हैं। चलिए, तो पहले तो हमने ये समझ लिया पैसा आता कहां से और जाता कहां से। अब हम इस बार के बजट पर एंट्री करते हैं। इस बार का बजट 24-25 कहला रहा है। इसका मतलब क्या है? टेक्निकली ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के खर्च की व्याख्या कर रहा है। पहले 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का खर्चा चूंकि हम अंतरिम बजट में कर चुके हैं, इसलिए 24-25 का मतलब है कि ये 31 मार्च तक जाने वाला बजट है। इस बजट के अंदर जिस चीज का ख्याल रखा गया है वो 4 मेजर बिंदुओं का ध्यान रखा गया है, आप इन्हें याद रखें। मतलब इस बार 4 जातियों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये 4 जातियां कौन सी हैं? एक जाति का नाम है गरीब, गरीब पर ध्यान दिया गया है। दूसरी जाति का नाम है महिला, महिला पर ध्यान दिया गया। और ये बजट के मेन पेज पर लिखी हुई जानकारी है, मैं अपनी तरफ से जातियां नहीं बना रहा हूं, बजट पर लिखी हुई है। तीसरी जाति का नाम है युवा और चौथी जाति का नाम है अन्नदाता यानी किसान। यानी कि इस बार का बजट 4 चीजों पर केंद्रित बजट है। पुअर पर, गरीब के ऊपर, साथ ही साथ में महिलाओं के ऊपर, युवा के ऊपर और फार्मर के ऊपर। इन लोगों के ऊपर यह बजट केंद्रित है। ठीक है, लेकिन इस बजट की एक थीम भी है, और वो थीम क्या है? थीम है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में जो विस्तार पूर्वक इस एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो भी जानते हैं। E stands for एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, M stands for MSME। ये सरकारी पत्र बजट पर लिखी हुई जानकारी है, इन्हें ध्यान से समझिएगा, गहराई से लीजिएगा। अगर विद्यार्थी है तो याद भी कर लीजिएगा। P stands for productivity, L stands for land, O stands for opportunity, Y stands for youth, M stands for middle class, E stands for energy security, N stands for new generation reform, and T stands for technology। इस प्रकार से इस बजट को बजट फॉर विकसित भारत कहा गया है। ठीक है, तो थीम क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट थीम है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही साथ ये किन लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई है? तो 4 कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रख करके बजट लाया गया है। शुरू करते हैं किसानों से। किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए साइड में रख दिए गए हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए, जिसके माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग किया जाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च को, आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाएगा ऑयल सीड्स के मामले में। न्यू वैरायटी ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स हैं और ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप जो कि हॉर्टिकल्चर के लिए काम आ सकती है, उन्हें रिलीज किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, हरित क्रांति जब हुई थी, तो हरित क्रांति के समय पर क्या कहा गया था? हरित क्रांति क्यों हुई थी? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स और वाटर, इन 3 की वजह से हरित क्रांति हुई थी, यानी कि अधिक उत्पादकता वाले बीजों के कारण। तो यहाँ पर अधिक उत्पादकता के 109 बीज रिलीज किए जाएंगे, यानी कि खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी पर निर्भरता दिखा रही है। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए FPOs का प्रमोशन किया जाएगा। कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन, इनको बढ़ावा दिया जाएगा।
नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक एंड ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों से कहा है कि वो आने वाले सालों में प्राकृतिक कृषि को अपनाएं। इसके लिए उन्हें मतलब प्रमोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड को और ज्यादा राज्यों के अंदर जन समर्थन दिया जाएगा, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों से श्रिम्प यानी कि जो सीख से जो सी फूड बनाते हैं उनसे कहा गया है कि श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। किसानों के मामले में कहा गया है कि भारत प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस के लिए एग्रीकल्चर में 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा इन सभी सेक्टर्स के अंदर, ताकि 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के ऊपर जो कि नेचुरल फार्मिंग में बिजी हैं उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की जाए, ठीक है साहब। ये खास ख्याल रखा गया है किसानों के लिए, जिसको पीआईबी में इस प्रकार से अलग प्रकार से बता भी गया है। 2.66 लाख करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस साल में खर्च किए। प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा खरीफ की फसल का 400 जिलों के अंदर। साथ ही साथ जन समर्थ जिसको किसान क्रेडिट कार्ड कहा जा रहा है उसे 5 राज्यों के अंदर और बढ़ाया जाएगा। जो बातें मैंने पहले बोली हैं उन्हें ही यहाँ पर वापस लिख दिया गया है। किसानों के लिए एक प्रकार से और ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे ताकि वो अपनी आय को डबल कर सकें। किसान चर्चा करते हैं युवाओं के लिए क्या प्लान है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने 5 योजनाओं का अनाउंसमेंट किया, जिसके ऊपर पीआईबी ने लिखा है कि 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा युवाओं के लिए अनाउंस किए गए हैं। प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं में से युवाओं के लिए पहली योजना बनी है कि उन्हें किसी भी सेक्टर में एंट्री करने पर 15,000 रुपए का एंट्रेंस फंड दिया जाएगा कि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो ये पकड़ो, आपको 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके लिए सरकार बेनिफिट अपनी तरफ से इंसेंटिव दे करके करेगी। ये दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ऑप्शन रखा है। एम्प्लॉयर्स के लिए कहा गया है कि अगर आप ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर्स होने के नाम पर तो 3,000 रुपए प्रति माह 2 साल के लिए हर न्यू हायरिंग पर सरकार देगी, ताकि आप 50 लाख नए जॉब क्रिएट कर सकें। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक प्रकार से समझिए कि भारत के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड होता है, जिसमें वो अपनी कमाई का कुछ अंश जमा करके अपने जब मतलब नौकरी पूरी हो तो उस पैसे को उपयोग कर सकते हैं। सरकार उसे प्रमोट कर रही है और प्रमोट करके कि अगर ईपीएफओ के माध्यम से अगर कोई मालिक जनता मतलब अपने लेबर से कह रहा है, एम्प्लॉय से कह रहा है कि आप आके ज्वाइन करो, मैं आपको इतना ईपीएफओ का पैसा दूंगा, तो सरकार बोले हम अपनी तरफ से आने वाले 2 साल में आपको 3,000 रुपए और देंगे ताकि एम्प्लॉइज का ज्यादा फायदा हो और इस प्रकार से एम्प्लॉइज ज्यादा से ज्यादा जॉब करें। स्कीम भी होगी। चौथी स्कीम दी है इंटर्नशिप के लिए। इसके अंदर क्या कहा गया है, 20 लाख जो युवा हैं उनको 5 साल के पीरियड के लिए स्किल्ड युवा को तैयार किया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे, जहां के अंदर मतलब एक प्रकार से ओरिएंटेशन आउटकम के ऊपर आधारित होंगे और उनके पूरे कोर्स करिकुलम को स्किल के आधार पर डेवलप किया जाएगा। चौथा पॉइंट ये निकल करके आया और जो 5वां पॉइंट निकल कर आया है इसके अंदर वो है कि इंटर्नशिप दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहुत सारी आईआईटीज में जब बच्चे जॉब मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आईआईटीज के अंदर कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटर्नशिप, क्योंकि आईआईटी के बच्चे बहुत सारी कंपनी में इंटर्नशिप पाते हैं, वहां पर अभ्यास करते हैं, अनुभव लेते हैं और अगर वो अच्छे काम करने वाले हैं तो आईआईटी के उन बच्चों को कंपनी अपने पास ही रख लेती है, जॉब दे देती है। सरकार ने यहाँ पर क्या ऑफर दिया है ध्यान से सुनिए।
500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में इंटर्नशिप मिलेगी। यानी कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद देश की 5 बड़ी कंपनी होगी, इन बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा और उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह का अलाउंस दिया जाएगा। पहली ही बार विद ए वन टाइम असिस्टेंस, यानी 5,000 रुपए का उनको अलाउंस दिया जाएगा, जिसमें से CSR के थ्रू 6,000 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। कंपनी की अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी फंड इसमें ऐड किया जाएगा। मतलब एक प्रकार से इंटर्नशिप के लिए जो अभी तक बच्चे परेशान होते थे, बहुत से छोटे कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को इंटर्नशिप मिलती ही नहीं थी, अब उन्हें देश की टॉप 500 कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होगी संभवतया उन सब कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। जैसे भारत के लिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए कहा गया है कि लोअर किया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी को अगर महिलाओं के नाम पर खरीदा जाता है। स्ट्रीट मार्केट के लिए कहा गया है कि 100 वीकली आज स्ट्रीट फूड हब सेलेक्टेड सिटीज में शुरू की जाएंगी। ऐसे ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए 14 बड़ी सिटीज के अंदर जिसकी आबादी 30 लाख से ऊपर है, वहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे। वाटर मैनेजमेंट के लिए कहा है कि वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 से ज्यादा सिटियों के अंदर बैंकेबल पानी की व्यवस्था, बैंकेबल प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, हाउसिंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना 2.0, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऐसे ही और पॉलिसीज जिससे ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट क्रिएट हो, उसके लिए भी सरकार आगे आने वाले समय में प्रयास करेगी। इसी तरह से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कहा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड आने वाले समय में मुफ्त बिजली प्राप्त करेंगे। कम से कम 300 यूनिट पर मंथ उन्हें मुफ्त में दी जाएगी और इस प्रकार से 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी विभिन्न राज्यों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को भी सरकार अपने साथ लेकर चलती है। एनर्जी का प्रॉपर ऑडिट होगा और स्टोरेज पॉलिसी को ऊपर कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहा गया है कि 11,11,111 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 3.4% है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से रिसोर्स एलोकेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्पेस एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड अलॉट किया जाएगा। बात हो टूरिज्म की तो सरकार के द्वारा विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर और महाभादी टेम्पल कॉरिडोर, जिसको भी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ राजगीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी प्रॉपर सिग्निफिकेंट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नालंदा के अंदर भी टूरिज्म सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। उड़ीसा की जो सीनिक ब्यूटी है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे ही रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत ऐसे FDI प्राप्त किए जाएंगे जो कि भारतीय करेंसी में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। साथ ही साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान रखा गया। यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा केवल बिहार के लिए की गई और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के लिए भी बजट की घोषणा की गई। दोनों का बजट मिलकर के कई हजार करोड़ का होता है। मैंने कल ही एक सेशन किया था जिसमें आपको ये बताया था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं मिलने वाला है, विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलने वाला है, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी। लेकिन कल ही सेशन में मैंने आपको कहा था कि अगर इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो इन्हें विशेष पैकेज जरूर मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और अगर विशेष पैकेज भी इन्हें ना मिला होता तो संभवतया गठबंधन को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो जाती। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गठबंधन के लिए आवश्यक जो जानकारियां सबसे पहली थी कि गठबंधन के लिए हो सकता है कि अच्छे पद की डिमांड की जाए, स्पीकर के पद की डिमांड की जाए, विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाए। दोनों ही बिहार और
आंध्र प्रदेश नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी इन्हीं मांगों से सेटल होने वाले थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर बजट एलोकेशन में स्पेशल पैकेज दे दिया गया है, उससे संभवतया ये दोनों अपने राज्यों में विकास कार्य करवा पाएंगे। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का प्लान दिया गया है और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद दी गई है। इस प्रकार से बिहार के अंदर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय पर्यटन केंद्र बनेगा। बिहार में जो ये 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, इसमें से 26,000 करोड़ रुपए सड़क परियोजनाओं पर खर्च होंगे, विशेष रूप से पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे और बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे योजना को बनाने की घोषणा की गई। बिहार के पीलीभीत में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। महाबोधि और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे, क्योंकि बिहार में पुलों ने गिरने में होड़ मचा रही है। ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमण जी ने सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए बढ़िया पैसे दिए हैं। इसी कारण से बड़ा मैसेज इस बात की बनकर चल रहा है कि भैया मजबूत बनाना चुनाव तक टिकना चाहिए, क्योंकि बिहार में इस बार बहुत पुल गिरे। इस पर हमने ऑलरेडी सेशन भी किया था कि बहुत ज्यादा, मतलब 17 दिनों में 11 पुल गिरने की खबर आई। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू जी को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाएंगे। इस फंड से पानी, बिजली, रेलवे, सड़क, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया जा सकेगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए भी वित्तीय मदद दी जाएगी और इस रकम के माध्यम से और रकम भी मुहैया कराई जाएगी। सीतारमण जी ने 5 बार आंध्र प्रदेश का नाम लिया। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को। सीटें चंद्रबाबू नायडू की ज्यादा है, नीतीश कुमार जी की कम है, लेकिन नीतीश कुमार जी का डर केंद्र को ज्यादा लगता है। संभवतया यही कारण है कि नायडू जी का बजट 15,000 करोड़ है और नीतीश जी का बजट 59,000 करोड़। इसी के बाद लोगों ने भीम में बढ़िया से आनंद लिए कि कौन किस तरह से खुश हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इन दोनों चीजों के आनंद ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है सब बाकी तो सही है, और राज्यों ने क्या बिगाड़ा था, उन्हें आपने क्या दिया, क्योंकि अल्टीमेटली अन्य राज्य भी तो आप ही के हैं और उन राज्यों को आपने क्या दिया जिस पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं हुई। राजनीतिक सरगर्मियां थी तो आपने बिहार और आंध्र को प्यार से मना लिया। बाकी आम जनता सुने इनकम टैक्स के लिए क्या हुआ। इनकम टैक्स के लिए 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय वालों पर 5% के हिसाब से अब टैक्स लगेगा। पहले ये 6 लाख तक के ऊपर था। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर स्लैब में भी बदलाव फिलहाल के लिए किया गया, जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिए गए हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों को न्यू टैक्स रेजिम से अब 17,500 रुपए तक का फायदा हो सकता है। पुराने टैक्स रेजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नए टैक्स रेजिम के अंदर बदलाव है और इस बदलाव में 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रेजिम में अगर कोई व्यक्ति, ये ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम क्या है, इस पर मैं कल एक वीडियो लाऊंगा एक्सप्लेनेटरी, सो दैट आप ये समझ जाएं कि आप कौन सी टैक्स रेजिम को अपनाकर फायदा दे सकते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो 7 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स दे होगा न्यू टैक्स रेजिम मानने वालों को। उनके लिए वो अगर इन्वेस्टमेंट ठीक से प्लान करते हैं तो वो इस प्रकार की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। और कौन से सेक्टर को क्या दिया गया? डिफेंस को 4,54,773 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट को 2.5 लाख करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर को 1.5 लाख, होम अफेयर्स को 1.5 लाख, एजुकेशन को 1.25 लाख, आईटी टेलीकॉम को 1.25 लाख, हेल्थ को 89,000, एनर्जी को 68, सोशल वेलफेयर को 56 और कॉमर्स और इंडस्ट्री को 47,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। अगर आपसे ये जानकारी पूछी जाए, देखिए डिपार्टमेंट वाइज ये बजट एलोकेशन हुआ, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मेजर स्कीम्स में कौन सा पैसा ज्यादा दिया गया है
है। तो जब MGNREGA मनरेगा जिसे आप कहते हैं उसमें 86,000 करोड़ रुपए इस बार अलॉट किए जा रहे हैं, जो कि पिछली बार से 36,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ऐसे ही रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ रुपए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा बजट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर बढ़ाया गया है। ऐसे ही PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड है उनका बजट भी ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। ऐसे ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले अपने देश में बनते हैं उसमें 3,000 से 7,000 करोड़ का बजट कर दिया गया है। सोलर ग्रिड में भी डबल बजट कर दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर LPG के अंदर भी बजट जस्ट बढ़ा करके डबल कर दिया गया है, और बढ़ाकर डबल क्या 10 गुना कर दिया गया है। और क्रेडिट अंडर मतलब ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम है इसके अंदर भी लगभग 3 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। यानी बजट अलोकेशन इस बार कुछ प्रमुख योजनाओं के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, जो दर्शाता है कि इस साल सरकार का ध्यान किन किन चीजों पर रहने वाला है। ठीक है साहब, तो ये सारी बात बताई। इसी प्रकार पर सरकार ने 7 चीजों से कस्टम ड्यूटी घटाकर 2 चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। अगर हम महंगे और सस्ते होने की बात करें तो फोन और चार्जर आने वाले समय में घटेंगे, क्योंकि इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सोना चांदी के ऊपर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15% से घटाकर 6% कर दी गई है। ऐसे ही प्लेटिनम, कैंसर की दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोलर पैनल, रेयर मिनरल्स और फिश फीड इनकी ड्यूटीज को घटाया गया है। वहीं महंगाई में टेलीकॉम के सामान की ड्यूटी बढ़ाकर 10% से 15% की गई है और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने खर्चा कहाँ करना है वो बताया, अब कमाई कहाँ से हो रही है वो जानती। सरकार को इस साल अनुमानित है कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट है यानी रिकरिंग लेवल पर जो इनकम होती है आपके और हमारे टैक्स पे करने से, उससे 31.3 लाख करोड़ रुपए की आय संभावित है। और कैपिटल रिसीप्ट यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो एक ही बार प्राप्त होती है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर कोई ऐसा कर्जा जो एक ही बार लिया जा सकता था या एक ही बार जिसे कैश किया जा सकता था, उससे 16.9 लाख करोड़ रुपए की आय हो सकती है। जहां एक और भारत सरकार खर्चा 37.1 लाख रेवेन्यू पर कर रही है, वहां रेवेन्यू पर प्राप्त 31.3 करोड़ ही कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ की सरकार रेवेन्यू के घाटे में रहने वाली है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल से हालांकि प्राप्त ज्यादा कर रही है, खर्च कम कर रही है। कैपिटल में खर्च का अर्थ होता है देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किया जाने वाला खर्च। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 31 और 16 तो ये लगभग 47-48 लाख करोड़ रुपए के आसपास जाता है। और वहीं पर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 52 लाख करोड़ रुपए तक जाता है। खर्च 52 लाख करोड़ और आय 47 लाख करोड़। मतलब हमें बजट में घाटा प्रतीत हो रहा है और इसीलिए सरकार ने 4.9% जीडीपी का इस बार फिस्कल डेफिसिट अनुमान दिया है कि हमें घाटा होने वाला है। यानी आमदनी हमारी कम और खर्चे ज्यादा है। ऑब्वियस बात है, इसीलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे बजट के अंदर कर्जे लिए जाते हैं और कर्जों में 27% वैल्यू हमारे 1/5 बजट का हिस्सा कर्जा ही होता है। 1/4 हिस्सा जो है हमारा कर्जा ही होता है। तो इसी प्रकार से उसे लिया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए मार्केट के लिए क्या कुछ अनाउंस हुआ जिसके चलते मार्केट में बड़ी निराशा दिखाई, बाजार ने नाराजगी दिखाई। बाजार चाहे वो चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, उसके अंदर गिरावट देखी गई। कुछ कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई। उसके पीछे जो बड़े वजह निकल कर आई उसमें था फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, दैट इज STT, वो बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया। इसका मीनिंग भी कल एक बार और डिटेल सेशन में हम करके समझा देंगे। बेसिक रूप से ये समझ लीजिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना उसको सरकार किसी तरह से कम करना चाहिए। दूसरी तरफ से एक और काम हुआ और वो ये है कि कैपिटल गेन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे मार्केट में थोड़ी निराशा है। बहुत से लोग लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं और उसकी वजह से जब शेयर बेचते हैं और जब धन की प्राप्ति होती है तो उसे बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। पहले कैपिटल गेन टैक्स यानी आपने एक शेयर खरीदा, साल भर से ज्यादा के लिए अपने पास रख लिया, मान
को 2 साल के लिए रख लिया और बेचा, तो उस पर जो पैसा आपने कमाया उस पर 12.5% सरकार टैक्स देगी, पहला 10% वसूलेगी। इसी प्रकार से अगर शॉर्ट टर्म गेम है, आज पैसा लगाया, साल भर के भीतर भीतर पहले ही कमा लिया, अगर ऐसा करते हैं तो अब टैक्स 20% तक बढ़ा दिया गया। मतलब ये हुआ कि सरकार का प्रयास अपने शेयर मार्केट को पहले बढ़ाया और बढ़ा करके उससे पैसा बढ़िया से कमाया। यानी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ेगी जिससे कि आय में कमी हो। आय के तमाम साधन, क्योंकि हम बड़े खुश हो रहे हैं कि शेयर मार्केट 80,000 पार हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री का खुद का कहना था कि जब रिजल्ट आएंगे तब देखना कि कहां पहुंच जाएगा। तो भैया हमने बढ़ा तो दिया शेयर मार्केट, कमाने तो सरकार कमाने के रास्ते से निकाल दिया। इस वजह से लोग सरकार से नाराज है और यही कारण है कि शेयर के अंदर डिप देखा गया है, मार्केट के अंदर डिप देखा गया है। ठीक है साहब, इस पर भी हमने ऑलरेडी सेशन शुरुआत में हलवा सेरेमनी के दौरान बताया था कि सरकार एंजल टैक्स को ड्रॉप कर रही है। मैंने उस समय भी आपको जानकारी दी थी। एंजल टैक्स को यानी कि जो स्टार्टअप्स को मिलने वाला बड़ी कंपनीज का फंड है, उस फंड के अंदर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स ना वसूला जाए, तो इस बार एंजल टैक्स को ड्रॉप कर दिया है। हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी बजट में अनाउंसमेंट किया है और बड़ा अनाउंसमेंट में भूटान के लिए 2068 करोड़, अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़, बांग्लादेश के लिए 120, मालदीव के लिए जिसके साथ इतने रिश्तों में कड़वाहट है 400 करोड़, म्यांमार के लिए 250, नेपाल के लिए 700, श्रीलंका के लिए 250, मॉरिशस के लिए, ये सभी हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए जो बजट एलोकेट किया है वो आपके सामने है। देखने वाली बात यह है कि मालदीव का बजट जो घटाया गया है वो उठाकर श्रीलंका को पकड़ा दिया गया है। ये दर्शाता है कि मालदीव इस समय चीन के नजदीक गया और श्रीलंका भारत के नजदीक आया, तो बजट एलोकेशन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। संभवतया आप सभी साथियों को यह डिटेल जानकारी अच्छे से समझ में आई, और अगर ये जानकारी समझ में आई हो तो इतनी देर सुनने के बाद आपसे गुजारिश बड़ी संख्या में आप लोग लाइव इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने साथियों से साझा भी कर दीजिए। आपको ये बजट कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक जरूरी जानकारी जाते जाते जान जाइए, और वो ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी AI और ChatGPT की इस फ्री कार्यशाला को ज्वाइन करना चाहता है तो ग्रोथ स्कूल के द्वारा आप लोगों के लिए एक फ्री वर्कशॉप रखी गई है, जिसके लिए आप अभी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए और अपने आप को डायरेक्ट स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। केवल अंकित इंस्पायर इंडिया के लिसनर्स के लिए यह जानकारी, मतलब ये सेमिनार जो AI चैनल के बोर्ड बना है देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अभी जाकर आप इसे फाइंड करें। और हाँ, आप लोगों के लिए जल्दी ही हम एक ऐसी सीरीज जिसमें हम कुछ लोगों को समाज के लोगों को आपके साथ साक्षात्कार करा रहे हैं जिन्होंने समाज की माने को बनाने में आई है। जल्दी ही आपके सामने हमारे इसी चैनल पर हमारा एक और प्रयास इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज आ रहा है, देखना ना भूलें। What's in it for them and why should they get on board? Madam, they are the most important. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर इंडिया पर। आप ऐसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं जिससे न केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को बहुत ध्यान से सुना है। आज का सेशन बहुत संजीदा है, संभव है कि थोड़ी देर बाद यूट्यूब इस विषय पर हमारी इस वीडियो को दबा दे। आप अपने गार्जियन से पेरेंट्स के मित्र हैं उनके साथ अपने मित्र साथियों के साथ जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल देगा कि इसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी एज के हिसाब से सही नहीं। संभवतः ये जानकारी यूट्यूब की जिम्मेदारी होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके साथ ऐसा विषय साझा जिसके किसी बहुत बड़े व्यक्ति जिनको आज तक लोग पढ़ाई का पर्याय मानते हैं। कलाम साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन चेंज द वर्ल्ड। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोग इस वर्ड को से ले लिए। एजुकेशन से दुनिया को बदला जा सकता है, एजुकेशन से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लेकिन सही मायने में अब्दुल कलाम साहब के जीवन का वो लाइफ एक्सपीरियंस लेना भूल गए थे। जब कलाम साहब ने कहा तो एक बार एयरफोर्स पायलट के लिए अपने आप को ट्रायल देने गए थे। एयरफोर्स पायलट के इंटरव्यू में गए, 9 लोग 8 लोग होने थे। कलाम
साहब found, डरे थे or a Of refinery course. comes up, एयर And फोर्स the पायलट economy होने of से that place रिजेक्ट is कर दिया drastically गया। changed. लेकिन आज Name वही again? एयर happens फोर्स very Daniel. quickly. कलाम If साहब I am के to rule So I प्रयोगों asked का him, how do you लोहा know? माना। He said, you know, कलाम my साहब father द्वारा was दिए in the गए IOC. जो Make भी Shadrach, आविष्कार हैं, Meshach, and उनका Abednego लोहा माना। leaders of Babylon as कलाम well. साहब की Make a बातों को sense जो shall अपने be जीवन में done. प्रेरणा माना I है, just came शायद today. उनके जीवन I में was in Europe. फेलियर I was से in Many उनसे भी years किसी ने passed, प्रेरणा ली होती। and after तो King आज Nebuchadnezzar left the throne, his son मेरे प्यारे साथियों, Belshazzar became राजस्थान के अंदर एक king. शहर है जिसका नाम है कोटा। Daniel stayed in Babylon, and every day, 3 times a day, he faced Jerusalem and prayed to God. 23 लोगों ने, 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और मात्र 24 घंटे में कल रविवार के After so many years, Daniel was completely forgotten. We've done it जिनको in नहीं 6 पता, years जिनके and one. बच्चे छोटे But हैं, the उन्हें real इसलिए story, I think, which is not known, is the green hydrogen story. जानना चाहिए।